आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स इन पी बाई क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, क्यू इज़ नॉट ए जीरो। इसका मतलब क्या है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन यानी कि रैशनल नंबर, पी बाई क्यू ये रैशनल नंबर होता है, तो पी बाई क्यू इज़ ए रैशनल नंबर, इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। 0.6 के बाद ये पार इसको डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है। ओके 0.6, तो ये हमारा है रिकरिंग है। ओके रिकरिंग, तो इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दिस इज इक्वल टू, यू कैन से 0.666 बार। ओके यू कैन से लाइक दिस। ओके देन दिस इज x, this is x, then you can say 10x equal to 6.66 bar. Okay, this is equal to 10x. Okay, you can say like this, 10x equal to 6 plus 0.6 bar. Okay, then this 0.6 bar is equal to x, then you can get this is equal to 6 plus x. Okay, then you take this x to that side, then it becomes 9x equal to 6, then x equal to 6 by 9. Then you can say this 0.6 bar, you have assumed x earlier, that is equal to x equal to 0.6 bar. Then you can convert it into the fraction form, 6 by 9. So you have converted the decimal into fraction. So this is the first question. Then we will start second question here now. Second question is 0.47 bar. Okay, 0.47 bar. Another question is, this is like this. You can say 0.47 bar. You have to convert it into, say, into the fraction form. This is x. Okay, you can say this is equal to 0.47777. Okay, like this. This you can say into, you can say multiplied by you can multiply it by say 10, or you can multiply by 100. 10 से कर लेते हैं, 10 से you can say it will be 4.777 like this bar. Okay, so you can say 10x. Okay, अब इसमें से you can say, you can minus x, then you can say 10x minus x equal to 4.77 bar minus 0.47 bar. Then it becomes 9x equal to, you can say 9x equal to, you can minus it, this become 4.3. So 9x equal to 4.3, then x equal to 4.3 by 9. So you can say 43 by 90. This will be the answer. Okay, this will be the answer. Okay, this will be the answer. So you can find out x equal to 43 by 90. Okay, so you can take the third question now. Third question you, okay, you can take the third question now. Third question is 0.001 का bar, and you can say this you have to convert into this decimal is 0.001 into
fractions, let it be x. Okay, you can say, you can write it down like this: 0.001, then again 001, then again 001. Okay, you can say like this, इसको मल्टीप्लाई करें 1000 से, तो you can say 1000x equal to 1.001001 अगेन का बार, इसमें से माइनस कर दें 1000x इज इक्वल टू, you can say this is equal to 1 plus x, this is equal to 1 plus x, then you can say 999x equal to 1, then x equal to 1 upon 999, so this value equal to 1 upon 999. So you have converted into fraction p by q form, rational number p by q form. So this is the question number 3. Similarly, you can go for question number 4. Express the 0.9999 in the p by q form. Express the 0.999 in the p by q form. Then you can say 0.99999 in the p by q form में convert करना है, तो you can say that this will be x. Okay, this is will be x. This is equal to say 0.999 like this, 0.9999 this. You can say you can put a bar here. Okay, then you can multiply this by 10, 10x equal to, you can say 10x is 9.9 bar. Okay, this is equal to 10x. You can say this again, this will be equal to 9 plus 0.9 bar, this is equal to x. You can say this will be equal to 9 plus x, x को उधर ले जाएंगे, this become 9x equal to 9, then x equal to 9 by 9 equal to 1. It is, imagine this 0.99999 becomes equal to 1 because this is almost equal to 1. The difference is, you can say 1, and the difference is 0.00000 and almost 0000. Last में जाके you can say 1 is where I don't know, 1 is where I don't know, so it is almost equal to 1. This is amazing answer. Another is, next question is, you can say, can maximum number of digits can be repeating block digit of 1 by 17. अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1 को 17 से, जब तक डिवाइड करते रहना जब तक रिमाइंडर 1 ना आ जाए. ओके, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, करते हैं किसको. ओके, 1 बाय 17 को डिवाइड करना है, देखते हैं कहाँ तक कर सकते हैं, दोबारा रिमाइंडर 1 नहीं आ जाए. ओके, गलती भी हो सकती है अगर लंबा क्वेश्चन है, से 0 9 17 पंजे 85. ओके, पुट 5 here, then 15. Okay, then another 0, 17 136, 14, put another 0. Okay, 136, put one another 8, 4 0, सत्रह 34 6, another 0. Okay, 3 5 6
so you can put it here. 50 आ गया, इसे 17 दिया, 34, 16, put another 0, 9, 9, another 0, 'then again remainder last comes out to be 1. So this will be the figure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So this will be the answer. It is the repeating again. This block, complete block will repeat. Okay, again this answer will be repeat. So this is the how you can find out the repeating होगा, but this block is quite large. Okay, जब तक दोबारा रिमाइंडर 1 ना आ जाए, you have to find out, you have to divide it continuously till remainder comes again same as you have taken last first. ओके, ये रिमाइंडर सेम आ जाए तब तक आपको इसको करना है. तो ये एक क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है, बट यू आर कॉशियसली कीजिए. तो दिस विल बी द ब्लॉक. तो ये दैट क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें. अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दिस. Look at the several examples of rational number in the form of p by q, where p and q are integer, no common factor other than 1, and having terminating decimator representation expansion. Can you guess the what property q must satisfy? Okay, that वो जो डिस्कस किया था आपसे पहले भी. p बाई क्यू है, एक रैशनल नंबर होता है. अगर डिनोमिनेटर q जो है 2 और 5 के मल्टीपल्स में ना हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और रिकरिंग होता है. जैसे 3 हो गया, ओके 7 हो गया, ओके 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 7, 6 हो गया, ओके क्योंकि 6 के फैक्टर 2 is 3 है, 9 हो गया. ओके, अगर ये डिनोमिनेटर हैं और सिंगल फॉर्म में लिखे जाते हैं तो ये आपके होंगे नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. अगर 2 और 5 के हैं, 2 और 5 के फैक्टर हैं तो हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ये तो हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. और Q जो है, इट इज़ ऑफ Q इक्वल टू 2 और 5 के फैक्टर में है तो हो जाएगा टर्मिनेटिंग. ओके, तो डायरेक्टली आप देख सकते हो, जैसे 1/8 है, दिस विल बी टर्मिनेटिंग. 1/40 है, इट इज़ आल्सो टर्मिनेटिंग. 1 by you can say 20 है, then this is also terminating because it's 4 and 5. so terminating के लिए आपको फैक्टर जो 2 और 5 का होना पड़ेगा, और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए अगर ये नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग. सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 7. 8 डिफरेंट रैशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर है 5/7 और 9/11. ओके, यू कैन से 5/7 और 9/11 के बीच के इरेशनल नंबर लिखने हैं. यू हैव टू राइट डाउन द इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11. 5/7 और 9/11. तो 5/7 होता है 0.9,
7 1 के करीब 714 के बाद होता है, और दिस इज़ इक्वल टू 9/11 होता है। 0 पॉइंट डिवाइड करके देख लेंगे 9 को 11 से, तो यू कैन से 9/11 होता है 0.8118। ओके, ये टर्मिनेट होंगे कहीं पे जाके, क्योंकि इतना ही बहुत है। इन दोनों के बीच की संख्या 7 और 8, और 7.14 और 7 तो आंसर विल भी इन दोनों के बीच में कोई भी ले सकते हैं। 7 1 के बाद 0.8, ओके 7 और 8 के बीच में तो कुछ नहीं, 0.7 कोई भी ले सकते हैं। 1 कोई भी, 2 3 5 8 9 1 2 3, इट शुड बी कंटिन्यूस, इट शुड नॉट बी टर्मिनेटिंग, और रिकरिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, ये ध्यान में रखना है, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नहीं होनी चाहिए, तभी वो इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, दैट इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर। कौन सा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और उसके बाद ये दूसरा ले लीजिए 0.73 फिर 4 5, कोई भी नंबर लिख दीजिए, लिखते जाइए। ओके, दैट इज इरेशनल नंबर हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इरेशनल में दोनों नॉन हो जाते हैं। ओके, दोनों नॉन लग जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके, तो यू कैन सी दिस इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज ए इरेशनल और इरेशनल। ओके, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इट विल बी इरेशनल नंबर बिकॉज इट इज नॉट। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं अभी हमने डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर इरेशनल नंबर हमने डिस्कस किए, वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, और नॉन टर्मिनेटिंग हो इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, वो कौन से नंबर होते हैं? √3 पहला है, √3 पहला है, √33। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो ये इरेशनल नंबर है। सेकेंड नंबर इज, देखते हैं, सेकेंड इज √225, √225, √225। सो √225 जो है, √25 √20, ओके, √225 का रूट होता है 15। सो इट इज़ से इट इज़ टर्मिनेटिंग, सो ये इरेशनल नंबर नहीं है। ओके, इरेशनल नंबर नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, 0.3796, 0.3796। तो ये तो टर्मिनेटिंग है, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर नहीं है। ओके, इरेशनल नंबर में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अगला क्वेश्चन, ये जो देख रहे हैं आप, दिस इज 478.478, तो ये एक प्रकार से यू कैन से दिस इज 47। ये क्वेश्चन जो देखें जरा एक बारी, 7 पॉइंट, ओके दिस इज 7.478, अगेन 478 एंड सो ऑन। तो ये है जो रिकरिंग है। ओके, दिस इज इक्वल टू 7.478, ये रिकरिंग है। रिकरिंग है, ये तो नॉन रिकरिंग नहीं है, तो ये है रैशनल नंबर, इरेशनल नहीं है।
दिस इज रैशनल। ओके, तो ये देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखें, तो ये जो है कंटिन्यूस है। अगर देखें तो ये है, इसमें कोई रिकरिंग है? नो 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 नो, 3 के बाद 4 जीरो आ रही हैं, तो दिस इज़ नॉट ए रिकरिंग। सो नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। इट इज़ 1 पॉइंट, दिस इज़ नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इट इज़ नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। सो यू कैन से दिस इज़ ए इरेशनल नंबर, दिस इज़ ए इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल हुआ, एक ये इरेशनल हुआ, 2 इरेशनल है ये, बाकी सारे रैशनल है। ओके, ये 2 ये रैशनल है। ओके, √25 से अगर दोबारा करें तो ये देखें, √23 इज़ इरेशनल। ओके, और दिस इज़ रैशनल, दिस इज़ रैशनल, दिस इज़ रैशनल, और लास्ट वन इज़ 1.0001 है, वो इरेशनल। इरेशनल होगा, ये 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, तब जाके वो इरेशनल होता है। √2 √3 एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर के। थैंक यू।